Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Vibha. Students, now today I am going to complete this topic pronoun. I have already taught you the 6 parts of pronoun. Rest of the three today I will taught you 7, 8 and 9. So let us start with point number 7. The name of this kind is indefinite pronoun. What is indefinite pronoun? The pronoun those do not refer to any particular person or thing are called indefinite pronoun. As you can say that name suggests that indefinite which the things which is not definite or particular or special, जो चीज़ें आपकी definite नहीं है, they are fall in the category of indefinite pronoun. So those pronouns who do not refer to any particular person or thing are known as indefinite pronoun. There are some examples for you: some, all, many, any, nobody, few. These all the words are used as indefinite pronoun. Got it? ये जो आपके सामने कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज़ होते हैं. बिकॉज सम, देर इज़ एन एग्जाम्पल सम. सपोज सम, देर इज़ a quantity of anything but not a specific quantity. If I said that I have 2 kg rice, means there is a complete or exact amount of 2 kg. But if I had said that I have some rice, you don't know how much I have. Just indefinite figure is in front of you. There वहाँ पर आपके सामने एक indefinite figure है. You didn't know that what is the exact amount of that particular rice. That's why these terms are known as indefinite pronoun. Same with, as you can see the examples I have written here. All were drowned. Drowned means डूब गए, सभी डूब गए. All were drowned, सभी डूब चुके थे. Means you don't know how many or how the who were drowned. You don't know about that particular exact number or exact name. ऑल मीन्स सभी आ गए उसमें. यू डोंट नो अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन. आप उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं जानते जो लोग उसमें डूब चुके हैं. दैट्स वाई ऑल इज काउंटेड एज indefinite pronoun. In the second example, you can see that somebody has stolen my watch. किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है. somebody, यहाँ पर somebody जो है वो क्या है, एक indefinite pronoun है. because you don't know the person who is someone. आप नहीं जानते कि वो someone कौन है, बस आपने एक guess किया कि किसी ने मेरी चुरा ली है. तो वो if I put any name here, if I said that Riya has stolen my pen या Ravi has stolen my watch, then there will be a particular person. But if I have said that someone has stolen, means someone is not a particular or definite person. वो कोई definite person नहीं है. That's why it comes in the category of indefinite pronoun. The next example is many of them were Indians. वहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप है. मैनी ऑफ देम, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि इंडियन हैं. बट यू डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. यू डिडेंट मैंशन हेयर. आपने यहाँ पे वो मैंशन नहीं किया हुआ है. मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउन. गॉट इट? आई होप यू विल गॉट इट. द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस सेक्शन इज interrogative pronoun. What is interrogative pronoun? So you can see, मैंने बताया था इंटेरोगेशन वो होती हैं जहाँ पर आप कोई क्वेश्चन पुट करते हो. सो लुक एट दिस डेफिनेशन. अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. एक ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज़ आप क्या करते हो, क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हो. दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. उनको हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, जिनका प्रयोग हम क्या करने, फॉर आस्किंग क्वेश्चन. वी यूज दीज टर्म्स टू आस्क द क्वेश्चंस. सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज who are you. Who are you means there is a person from which you are asking a question, जिससे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो कि who are you, आप कौन हो. The next is which is your house. Here you ask the question about a thing. House is comes in the list of things.
तो किसका घर है, विच इज़ योर हाउस, कौन सा घर है आपका। द नेक्स्ट, whom do you want to see, किसको आप देखना चाहते हो, यहाँ पर किसको देखना चाहते हो मीन्स आपसे क्वेश्चन। सबसे बड़ी पहचान है क्लास इसकी, इसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क भी मिलेगा, देन इट बिकम्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट क्वेश्चन इज whose is this book, ये बुक किसकी है, अगेन क्वेश्चन मार्क, मीन्स दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। Pronoun class, you should be very attentive towards it. It is a very huge topic but I will concise it in a brief. मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि it will be in depth in the senior classes. So how much is related to your class, your standard, I am going to discuss like that. Relative pronoun, what is the meaning of this term relative pronoun? There is something relative means यहाँ पर इसके नेम से पहले सपोज हमेशा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हेडिंग आपके सामने आता है तो फर्स्ट यू हैव टू टेक आउट द एसेंस ऑफ दिस टॉपिक, उसका एसेंस समझने की कोशिश किया करो कि वाई दिस टॉपिक हैज़ बीन गिवन टू दिस, वाई दिस टर्म हैज़ बीन गिवन टू द टॉपिक, क्यों दिया गया है ये नाम इसको। रिलेटिव मीन्स यहाँ पर देर इज समथिंग विच रिलेट someone or something to the another one, got it, there will be a relation. So look at the definition. A relative pronoun is a type of pronoun that often introduce independent clauses in the sentence. ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसको इंट्रोड्यूस करता है, डिपेंडेंट क्लॉज। क्लास if you have learnt it in your previous classes then well and good, otherwise I am going to tell you in short form. The dependent clause क्या होती है, जब आपका कोई एक सेंटेंस दो भागों में बटा हुआ हो और उसका दूसरा पार्ट जो है वो पहले वाले पर डिपेंड हो। सपोज आपको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। सो बस इतना ध्यान रखिए, किसी भी एक सेंटेंस में अगर दो क्लॉजेज हैं, दो वर्ब ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं, दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब हैं और पहला वाला सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है, ऐसी कंडीशन में हम जिस वर्ड को यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। गो थ्रू द एग्जाम्पल। देर आर फाइव रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which and that. The starting three are used for living being and the rest of the two which and that is almost used for the things. स्टार्टिंग में जो है वो लिविंग बीइंग या पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द टू वी यूज़ फॉर द थिंग्स और लिटिल एनिमल्स एज वेल। सी द एग्जाम्पल्स। आई नो द मैन, ठीक है, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया आपका, मैं उस आदमी को जानता हूँ, किसको। अब यहाँ पर आपका वर्ड यूज़ हुआ हु, ठीक है, हु आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन है ये वाला, पर्सन के लिए आ गया हु। केम हेयर यस्टरडे, ये डिपेंड है, ये सेंटेंस आप देखो ध्यान से देखो, डिपेंडेंट क्लॉज है, इस पर डिपेंड है। आई नो द मैन, किसको जानता हूँ, जब तक मैं आगे आपको नहीं बताऊंगी, आपको नहीं पता कि आगे वो कौन सा मैन है, उस मैन के बारे में जानने के लिए आप दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट हो, ये डिपेंडिंग क्लॉज हो गई, गॉट इट। तो हु ने बताया हमें कि हु केम हेयर यस्टरडे, वो आदमी जो कल यहाँ पर आया था, मीन्स जो हु है यहाँ पर वो किसका वर्क कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का क्लास। देयर विल बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड दैट अभी आपने मैम इंटेरोगेटिव में भी यही वर्ड्स बताए थे, हु, होम, हुज, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सेंटेंस के जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस के मिडिल में यूज़ होते हैं और अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट के लिए वर्क करते हैं। ये हु जो है वो किसके बारे में बता रहा है, उस आदमी के बारे में जो कल यहाँ आया था। बट व्हेन वी यूज़ दीज वर्ड्स इन interrogative forms, you saw that I have mentioned a question mark and I was asking the question, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये टर्म्स जो है वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज़ हो रही हैं और यहाँ पर मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ इनसे, ये डिपेंडिंग क्लॉज का सिर्फ आंसर दे रहे हैं, गॉट इट। जब यही टर्म्स आपकी क्वेश्चन आस्किंग के लिए यूज होंगी देन इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बट व्हेन दीज टर्म्स विल यूज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस दे विल वर्क एज रिलेटिव प्रोनाउन विच सब्जेक्ट विल बी कम जस्ट बिफोर these terms, got it. The next example, this is the watch, एक सेंटेंस हो गया, this is the watch, got it. यहाँ तक आपका एक सेंटेंस हुआ, दिस इज आ वॉच। अब वॉच के बारे में मुझे बताना है, मैं डिपेंड कर रही हूँ
ये कौन सी वॉच है? विच। अब यहाँ पर विच यूज़ किया मैंने बताया था ये दोनों टर्म्स जो है वो किसके लिए यूज़ होती है? थिंग्स के लिए। तो वॉच इज़ अ थिंग, वॉच के लिए यूज़ हुआ है। विच आई बॉट, ये वही वॉच है जिसको मैंने खरीदा। अब ये वाला जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला आपका इस वाले पे डिपेंड हो गया, डिपेंडिंग क्लॉज में यूज़ हुआ। विच आपका मिडिल में आया, मीन्स इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेट कर रहा है इस वॉच को इस सेंटेंस से कि ये वही वॉच है जिसे मैंने खरीदा था। गॉट इट? द लास्ट वन इज दिस इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है। अब यहाँ पर फिर से हुज यूज़ किया मैंने, जिसको। ये मैंने बताया था ये 3 लिविंग बींग्स के लिए आते हैं। गर्ल्स लिविंग बींग है, गर्ल लिविंग बींग है, तो इसके लिए हु यूज़ किया मैंने। हुज मार्क्स आर हाईएस्ट, जिसके मार्क्स कैसे हैं? हाईएस्ट हैं। गॉट इट? जिसके मार्क्स कैसे आए हैं? हाईएस्ट हैं। So students, I hope you will got it very well. If you don't listen it carefully again and again, twice and thrice, that after that you will definitely get the point what I am going to tell you. Today I am completing this topic pronoun with its kind. मैंने आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है and I will send you an exercise in your classroom app. So go through there and complete your homework. We will meet in the next video, so wait and watch. Thank you. Have a nice day.